Hi guys, so we will be discussing UPSC previous year questions 2010 to 2019, and this is part 2 of geography, and it deals with topics of oceanography. So let's start the video. So the first question is of 2015, and the question is, what explains the eastward flow of the equatorial counter current? The options are the Earth's rotation on its axis, the convergence of the two equatorial currents, the difference in salinity of water, the occurrence of the belt of calm near the equator. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is the convergence of the two equatorial currents. So if you want to look at the picture of the equatorial counter current, this is a picture where you can see that in the northern side there is north equatorial current and in the southern side there is south equatorial current. Okay, and it is also mentioned that there is a North Pacific gyre and there is a South Pacific gyre. So I'm explaining you in short what is it. So gyre is nothing but like a cycle of ocean currents which is happening at a particular place. That is a gyre, like a cycle which happens there. And why this equatorial counter current happens due to the merging of these two currents, because like the north equatorial current and the south equatorial current, they pile up a lot of water in the middle, and due to the piling up of water, like a lot of water gets collected in the middle. ठीक है, बहुत सारा पानी जो है वो जमा हो जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट के वजह से, और वो जो पाइल्ड अप वाटर होता है, कलेक्टेड वाटर होता है, वो एक तरीके से एक ऐसे स्लोप में आ जाता है वेस्ट टू ईस्ट के। और इसी वजह से आप अगर सोचो, एक तरफ अगर बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाए तो वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट का एक स्लोप बन जाता है और इसीलिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट ऐसे बहने लगता है। सो दैट इज द रीजन इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज फ्लोइंग इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ओके, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, वो ये है कि आपका जो ये देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और जो साउथ इक्वेटोरियल, जो साउथ में जो भी करंट्स होते हैं वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। एंड दिस हैपेंस ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि रोटेशन होता है हमारे अर्थ का, और इसके वजह से एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। ये कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि जो विंड्स और ओशन करंट्स होते हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन में, उनका जो डायरेक्शन है उसको वो क्लॉकवाइज कर देता है। ठीक है, जो विंड्स और ओशन करंट्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और अगर नॉर्थ में क्लॉकवाइज होगा तो साउथ में कौन सा डायरेक्शन होगा, उसका अपोजिट, लाइक एंटी क्लॉकवाइज। So that is all about north equatorial current, south equatorial current and equatorial counter current. Equatorial counter current क्या है, ये accumulate हो जाता है जो north और south equatorial currents की वजह से जो पानी उसका जो slope बन जाता है west to east, तो ये वही बस flow कर जाता है उस slope में। ठीक है, that is it. Next question is again from the year 2015. Tides occur in the oceans and seas due to which among the following? The gravitational force of the sun, the gravitational force of the moon, and third, the centrifugal force of the earth. So there are four options: 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Please pause the video so that I can discuss the answer. तो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। आप देख सकते हैं कि जो टाइड्स होता है, टाइड्स क्या होता है, कुछ नहीं, बस ये जो पानी में जो अप डाउन होता रहता है ना, उसी को हम लोग टाइड्स बोलते हैं। अगर पानी ऊपर जाता है वेव करके तो उसको हाई टाइड बोलते हैं, और अगर नीचे जाता है तो उसको लो टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये, इसमें तीनों ही फैक्टर्स काम करते हैं: सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आपका हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पुल हमेशा डाउन होता है, नीचे की तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप अगर सोचो अगर कोई काउंटर फोर्स ना होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें नीचे आ जाती।
तो उसी को काउंटर करने के लिए एक और फोर्स है हमारे अर्थ में, एंड दैट इज व्हाई वी सी अ बैलेंस कि आई मीन काउंटर करने के लिए नहीं है, वो फोर्स, इसीलिए हमारे अर्थ में जो चीजें हैं वो बैलेंस्ड हैं, नहीं तो हर कुछ का पुल जो है वो नीचे की तरफ होता है। और इसी जो काउंटर ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ होता है, उल्टे ऊपर की तरफ, ठीक है। सो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इन द राइट साइड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून दिखाया है, मून है उस साइड, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून क्या करेगा, मून के तरफ पानी को ले जाने की कोशिश करेगा। वैसे ही ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन क्या करेगा, सन के तरफ पानी को ले जाने की कोशिश करेगा, और ऐसे ही करके हाई टाइड और लो टाइड बनते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो कंबाइंड इन द लेफ्ट साइड जो कंबाइंड इफेक्ट है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, उसका फिर फाइनल आउटकम वो डिसाइड करता है कि किस तरफ एक्चुअली टाइड होगा। सो दैट इज व्हाई each and every factor which was mentioned in the question, gravitational pull of the sun, moon and the centrifugal force, ये सारी ही चीजें एक्ट करती हैं in creating tides. Next question is from the year 2013. The most important fishing grounds of the world are found in the regions where, first option, warm and cold atmospheric currents meet. Second option, rivers drain out large amounts of fresh water into the sea. Third option, warm and cold oceanic currents meet. And fourth option, continental shelf is undulating. So please pause the video so that I can discuss the answer. So the answer is option C, where warm and cold oceanic currents meet. So this is a very like common concept कि ये जो आप देखिएगा, आप बहुत जगह हम लोगों ने पढ़ा भी है, एल नीनो वगैरह में भी हमें पढ़ते हैं कि अगर आपका वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट्स एक जगह पर मीट कर जाते हैं तो वो बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स अगर दोनों एक जगह मीट करते हैं ना, तो क्या होता है कि वहां का जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा रहता है। और अच्छा ऑक्सीजन लेवल लेने का मतलब क्या है, अच्छा रहता है इन द सेंस कि रिप्लेनिश हो जाता है, रिप्लेनिश इन द सेंस कि अगर जो भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो फिर से वापस मिल जाता है उस प्लेस को, तो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने से क्या होता है कि वहां पे प्लैंकटन का ग्रोथ अच्छा होता है, और प्लैंकटन की ग्रोथ होने की वजह से वहां पे मरीन ऑर्गेनिजम्स को अच्छा फूड मिलता है, क्योंकि मरीन ऑर्गेनिजम्स का बेसिक जो सबसे प्राइमरी लेवल फूड है वो है फाइटोप्लैंक्टन। तो इसीलिए क्योंकि वो ओशन करेंट्स वार्म एंड कोल्ड मीट होने से वहां पे प्लैंकटन का ग्रोथ बढ़ जाता है ड्यू टू गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज व्हाई इट these places are considered the most important fishing grounds of the world. Next question is from the year 2012. So the question is, the acidification of oceans is increasing. Why is this phenomenon a cause of concern? तो acidification जो बढ़ रहा है oceans का, वो क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, why is it a cause of concern? Sorry, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों वो एक cause है concern का? So first is the growth and survival of calcareous phytoplankton will be adversely affected. Second, the growth and survival of coral reefs will be adversely affected. Third, the survival of some animals that have phytoplankton larvae will be adversely affected. And fourth, the cloud seeding and formation of clouds will be adversely affected. Now you have to tell which of the statements are correct. Option A, 1, 2 and 3 only. Option B, 2 only. Option C, 1 and 3 only. Option D, 1, 2, 3 and 4. Please pause the video so that I can discuss the answer. So the answer is 1, 2, 3 and 4. ये सारे ही phenomena जो हैं ये cause of concern है due to acidification. कैसे? अब देखिए ओशन का एसिडिफिकेशन होने का क्या मतलब है, जो नॉर्मल क्वालिटीज हैं ओशन वाटर का वो आपका खराब हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर वो ओशन वाटर अपनी क्वालिटीज खराब कर देगा, मतलब वहां पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए तो काइंड ऑफ ऑब्वियस था। क्यों? क्योंकि आपका फाइटोप्लैंक्टन का जो शेल होता है वो आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो अगर ओशंस का वाटर जो है वो एसिडिक हो जाए तो उनका वो शेल जो है वो डैमेज होने लगेगा,
ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो चलिए हमें समझ में आ गया क्यों वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। सेकंड है कि कोरल रीफ एडवर्सली अफेक्ट होगा। ऑब्वियसली अगर फाइटोप्लैंक्टन अफेक्ट होगा तो कोरल रीफ भी अफेक्ट होगा। ठीक है, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ कनेक्टेड। तो इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन भी हम लोगों को पता है कि कोरल रीफ्स का भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे भी जो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इन कोरल रीफ्स, वो आपका अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का शेल जिसकी वजह से वो आपको रीफ स्ट्रक्चर दिखता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। Third option is the survival of some animals that have phytoplankton larvae will be adversely affected. Obviously अगर phytoplankton affect होगा तो जो भी animals हैं जिनके पास phytoplankton larvae होता है उनका survival भी affect होगा। फोर्थ ऑप्शन एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसीलिए यहाँ पे अगर कहीं कंफ्यूजन होना चाहिए तो ऑप्शन ए और डी में होना चाहिए। ठीक है, 1 2 एंड 3 आपको अगर ज्यादा कुछ नहीं भी पता है फिर भी आप गेस कर सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन है, क्योंकि आपको लग सकता है कि ओशंस के एसिडिफिकेशन से क्लाउड का क्या लेना देना। बट क्या होगा कि अगर ओशंस में एसिडिफिकेशन होगा तो इसकी वजह से क्लाइमेट पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं लिटरली उन पे अफेक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट इवेंट्स पे अफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, रेन्स। क्लाउड का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड क्या है, वो अल्टीमेटली रेन को रिलीज करती है। तो अगर क्लाइमेटिक इवेंट्स में ही प्रॉब्लम होने लगेंगे तो क्लाउड सीडिंग और फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज हाउ ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is also from year 2012, and the question is, consider the following factors. First, rotation of the earth. Second, air pressure and wind. Third, density of ocean water. Fourth, revolution of the earth. Now you have to tell which of the above factors influence the ocean currents. In ocean currents को इसमें से कौन से factors हैं जो influence करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 4 ओनली, ऑप्शन डी 2 3 and 4 ओनली। if you can pause the video and I can discuss the answer then. So here the answer is 1 2 and 3 only. आप देख सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में सारा जो है 1 2 and 3 3 and 4 नहीं है। ठीक है, सो तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि अगर 1 2 3 and 4 भी हो जाता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। सो इट्स गुड कि 1 2 and 3 ही ऑप्शन में था, 1 2 and 3 and 4 नहीं था, बिकॉज रोटेशन जो है वो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करेगा, वी नो। तो 2 3 and 4 में कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ से ओशन करंट्स में फर्क पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला रोटेशन से क्या जनरेट होता है, कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स के वजह से ही तो विंड्स और ओशन करंट्स का डायरेक्शन एक चेंज होता है लिटरली। तो रोटेशन तो होना ही होना है। ठीक है, और सेकंड इज आपका एयर प्रेशर एंड विंड। ये तो एकदम से ऑब्वियस है, क्योंकि एयर प्रेशर और विंड की वजह से ही ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, ओशन करंट खुद से तो उछलना नहीं शुरू करती है ना, तो देयर हैज टू बी सम रीजन। either there is some force due to like Coriolis force or some kind of force from the earth's surface or from the uh, you know another kind of forces generated due to gravitational pull or something, or ड्यू टू विंड, हवा लेके जाती है पानी को। ठीक है, अगर हवा एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो ओशन करंट्स को भी इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। ना डेंसिटी इज थोड़ा सा ट्रिकी, आपको लग सकता है, वैसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप ट्रिक नहीं होंगे, लेकिन आपको ये लग सकता है कि कैसे इन्फ्लुएंस करती है ओशन करंट्स को। तो डेंसिटी जब ज्यादा होती है पानी की तो क्या होता है, पानी नीचे चला जाएगा। तो ऑब्वियस है ये भी ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जगह पे अगर डेंसिटी जिस पानी की ज्यादा है वो नीचे चली जाएगी और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगी, तो ये एक डायरेक्शन डिटरमिन कर लेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन does not influence the ocean currents, that is revolution। revolution से ocean currents पे फर्क नहीं पड़ता है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया कि कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका रोटेशन की वजह से, नॉर्मली आपका अगर मान लीजिए रोटेशन ना होता, ठीक है, अगर अर्थ कांस्टेंट रहती तो क्या होता कि आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो नॉर्थ डायरेक्शन है, कोई सामान अगर ऊपर से ऐसे फेंकते
तो आपको वो सामान क्या होता, वो सीधा नीचे जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ रोटेशन है, ठीक है, ये एक जगह पे बॉडी स्टिल नहीं है, तो ये घूम रही है, तो घूमने की वजह से क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और वही फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर नॉर्थ में हम कोई सामान नीचे की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, तो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से आपका राइट डायरेक्शन में घूम जाएगी, ठीक है। और वही चीज अगर आप साउथ से करते हैं, तो साउथ से जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी, ठीक है। और इसी राइट और लेफ्ट के घूमने की वजह से उनका डायरेक्शन वैसा हो जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं कि वो आप जब ऊपर का आप देख रहे हैं, तो आप नीचे की तरफ जब कोई भी सामान, मान लीजिए एक बॉल आप फेंक रहे हैं नीचे, नीचे की तरफ आप बॉल फेंक रहे हैं और वो घूम गई राइट की तरफ, और आप सोचो आप उसको एक्सटेंड करो अगर उस मूवमेंट को, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती है। और वैसे ही आप अगर साउथ वाला थोड़ा डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें, तो आप देख सकते हैं कि आप उसको अगर अपना थंब और हाथ रख के कोशिश करिए, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स एंड कोरियोलिस इफेक्ट विच इज कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। Next question is from the year 2010. Consider the following statements. On the planet Earth, the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found. Second, of the total fresh water found on the planet Earth, 95% is bound up in polar ice caps and glaciers. You have to tell which of the statements given above is or are correct. Only one, only two, both one and two, and neither one nor two. So you can pause the video and I can discuss the answer. So the answer is option A, only one. Why? Because of the total, this option B, that is the option 2, of the total fresh water found on the planet Earth, they said 95% is bound up in polar ice caps and glaciers. Now we need to notice कि ये बोल रहे हैं of the total fresh water, ठीक है। पहली बात तो जो fresh water available होता है, हाँ, वो हमारे पास 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड से कम होता है, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है कि जितना बाकी जो फ्रेश वाटर है हमारे पास, जितना भी परसेंट, उसमें से 95% पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में नहीं है, 68.7% अराउंड ही है वहां पे। सो दैट इज द राइट फैक्ट। और आपको याद होगा कि लास्ट वाला जो वीडियो था, उस जियोमॉर्फोलॉजी में भी एक क्वेश्चन हमने देखा था इस चीज से रिलेटेड। तो ये वाले चीज पे यूपीएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये पिक्चर डिस्कस किया था कि जो नॉर्मली जो पानी है हमारे पूरे अर्थ पे, तो उसका 97.25% ओशंस के पास है। लेकिन ओशंस की सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो सॉल्ट कंटेंट होता है ओशंस में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते फॉर डेली पर्पसेस। तो बाकी जो बचता है वो होता है आपका, उसमें से कुछ पोर्शन आपका फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है वो 2.05% है टोटल वाटर में। फिर आता है ग्राउंड वाटर, फिर आता है लेक्स, फिर सॉइल मॉइस्चर, फिर एटमोस्फेयर, फिर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और फिर बायोस्फेयर। तो ये सीक्वेंस आप थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको पता होगा। वैसे जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उस पर थोड़ा सर्च किया कि कुछ सही सा आंसर मिले, बट मुझे कुछ प्रैक्टिकली सच बता रही हूँ, मुझे कुछ सही का आंसर वैसा अच्छे से मिला नहीं। ये आंसर वन ओनली था, इसीलिए वी कैन टेल, बट लाइक यहाँ से हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि इफ यू रियली फील कंफ्यूज्ड, क्योंकि जैसा हम यहाँ देख रहे हैं इट्स लाइक ओशंस इज 97.25, तो बचता है अराउंड 3% है, ठीक है। और उसमें से किसी ने ये नहीं लिखा कि फ्रेश वाटर इतना है, बट आई थिंक इट इज रिटन समवेयर इन एनसीईआरटी, तो अगर वो जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल। ये मैंने देखा कि फ्रेश वाटर 1% से कम होता है, लेकिन अभी आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स का ना मैंने बस एक आंसर, जो जनरल स्टडीज 10 years पेपर्स टाइप का कुछ था, वहां से मैंने देखा, तो वहां पे लिखा था कि 68.7% ही ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर आपका आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स से आता है। So this is all I wanted to tell you about. Sorry. And here we are in the end of the video.
So if you like the video, please share it with your friends. It would really, really help me to reach more people. And if you really liked it, then please give a thumbs up. And if you're new to the channel, please subscribe. I do not have many subscribers right now, so it would really help me. And thank you so much for watching the video.